just we'll have the recap within 5 minutes what we have seen till date here in the chapter. We are continuing with the chapter. Yes, everybody, good evening. So we are here with the topic called states of matter. There are 3 states of matter, that is solid, liquid, and gaseous state. There are many factors on which these 3 states of matter depends. Out of that, we know it very well. 2 are very important: thermal energy, and number 2 is nothing but intermolecular force of attraction or interparticle force of attraction. That is what we are seeing here. Then furthermore, this chapter has 3 sections. First section has some introductory part, जो हमने already 10th और 9th में देखा था, उसी का थोड़ा सा introduction और continuation आ जाता है. Middle part is the core concept of the chapter, and at the end of this chapter we are going to discuss the applied part as well as deviations from the gaseous laws, and lastly liquid and solid state के बारे में थोड़ा सा definitions हम लोग class में discuss करेंगे. So that is what we discuss here in solid state. तो कल के लेक्चर तक हमने ये डिस्कस किया कि what are the properties of solid, liquid and gaseous. We have seen the comparative properties of the solid, liquid and gaseous one. Also we have seen there are 2 major factors which affect the states of matter. Number 1 is nothing but thermal energy, and point 2 is nothing but interparticle force of attractions. In detail we have seen this interparticle force of attraction, also known as intermolecular force of attraction, makes big difference which intermolecular force of attractions are present. So we have seen them in detail. We have seen dipole-dipole interaction. We have seen dipole-induced dipole interaction. Third, you can say ion dipole interaction. Fourth, London forces, also known as dispersion forces. And fifth one is nothing but the hydrogen bonding. So we have seen this phenomena. Uske andar dipole and dipole interaction is a very important topic and important concept. और हमने वो discuss किया इसके अंदर important dipole के अंदर. When we are talking about the dipole, इसके अंदर होता क्या है dipole के अंदर? Dipole का definition देखा. It is the product of the magnitude of the charge and distance between the charges. So that is dipole is equal to Q into L. So that is what we are saying. And dipole is measured in G में. D में measure किया जाता है. ये हमने देखा. और फिर dipole-dipole interaction क्या है? Ion dipole interaction क्या है? Dipole-induced dipole interaction क्या है? So these are the topic what we have seen in last lecture. उसके बाद हमने और एक टॉपिक डिस्कस किया था, that is you can see here thermal energy. How thermal energy affect the states of matter. Thermal energy is lowest in case of solid and thermal energy is highest in case of gaseous state, whereas it is moderate in case of liquid phase. ये भी हमने उसके अंदर डिस्कस किया था. क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव किए थे, that is you can say कल के लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट. अभी देखिए दो हमारे चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर और देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. फिर भी इस चैप्टर के अंदर 80% पार्ट ऑलमोस्ट सिर्फ गैसियस स्टेट से रिलेटेड है. सॉलिड एंड लिक्विड गैस स्टेट हम इस चैप्टर में बहुत कम डिस्कस करते हैं, ऑलमोस्ट 25%, 20%, नॉट मोर देन दैट. सो यहाँ पे हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट. व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट, ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर दिया. क्लियर? नाउ थोड़ा सा आगे चलते समय हमने ये भी डिस्कस किया इसके अंदर व्हाट आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. सो गैसेस के जनरल प्रॉपर्टीज क्या है और गैसेस के मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या है हमने देखे हैं. सो जस्ट वी हैव द रिकॉल ऑफ द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस. Gases have lowest gases has highest thermal energy and they have weakest intermolecular force of attractions. Gaseous particles are free and that's why they have the random motions. They move here and there with the random motions. Then gases are highly compressible. Gases neither have definite shape nor the definite volume. Gases acquire the entire volume available to it. Gases being in continuous motion, they strikes on the wall of container, exert the pressure. So these are the different, every gas has the mass and all. So all these are the properties of the general properties of the gases what we have discussed in last lecture. फिर उसके बाद देखा हमने what are the measurable properties of gases. तो बोर्ड के ऊपर अभी भी है what are the measurable properties of the gases. So measurable properties is nothing but the mass. Every gas has the mass. Every gas has the volume. Every gas has the pressure. Every gas has the temperature, and every gas has the density. So that is what we can see here. So these are the properties what we have to discuss. These are measurable properties of gases. So हमने कल देखा mass. How to measure the mass? Mass is measured in kilogram. Kilogram is the SI unit of the mass. Mass कैसे measure किया जाता है? First, we'll weigh the empty cylinder. Then we'll fill the cylinder with the gas and we'll take the measurement or weight of this filled gas. And then W2 minus W1 will use the mass of this gas. Now, इसके अंदर ये भी बताया कल मैंने
कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट में डिफरेंस है, दो हम थोड़ा सा केमिस्ट्री में एक ही मीनिंग से उसे यूज करते हैं, लेकिन वो कंप्लीट डिफरेंस है दोनों के अंदर। मास इज अ वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो नहीं चेंज होता है, किसी भी सब्सटेंस का मास फिक्स होता है, वेट बदल सकता है। देखिए सेम सब्सटेंस का वेट बदल सकता है। टेक एग्जांपल ऑफ यूएस, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग अर्थ के ऊपर हमारा जो भी वेट है ना, मानो अर्थ के ऊपर किसी पर्सन का वेट 60 केजी है, और वही बंदा जब मून पे चला जाएगा तो मून पे उसका वेट अलग होता है ना। वही बंदा जब मून पे चला जाएगा तो हम जानते हैं कि मून पे उसका वेट कम है, और कितने से कम होता है ये भी आप जानते हो, है ना। सो मून पे उसी पर्सन का वेट कम आता है और अर्थ के ऊपर उसी पर्सन का वेट ज्यादा आता है। रीजन बिहाइंड दैट वेट एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन मास, अर्थ के ऊपर भी उस बंदे का मास उतना ही रहेगा और मून के ऊपर भी उस बंदे का मास उतना ही रहेगा, है ना। मास में बदलाव नहीं आएगा। तो मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मास का मतलब है हाउ मच क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन द गिवन बल्क, कितना क्वांटिटी है बल्क के अंदर उस सब्सटेंस के, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से, मास। बस मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। यहाँ पे वॉल्यूम, there are many instrument by which we can use volume of the gas. We have measuring cylinder, जिस तरीके से हम लोग दूध मेजर कर सकते हैं लीटर में, है ना, जैसे शुगर यूज करते हैं किलोग्राम में, उसी तरीके से गैस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, और उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है मेजरिंग सिलेंडर्स। तो यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज मेजर्ड। ओके, ये हम लोग मेजर करते हैं। फिर उसके बाद देखा हमने कि प्रेशर, प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं। This is the container, or gaseous particles are arranged in continuous motion. So because of the motion, these particles strikes on the wall of container. वो container के जो wall है उसके ऊपर हमेशा टक्कर देते हैं, और at a time number of particle टक्कर देंगे तो they exert the pressure, और pressure exert होता है, and that is measured in Newton per meter square. और प्रेशर का फॉर्मूला भी देखा है हमने अपने 10th 9th में भी देखा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, पार्टिकल फोर्स लगाते हैं अपॉन द पर्टिकुलर एरिया ऑन व्हिच दैट फोर्स इज अप्लाइड। सो अकॉर्डिंगली वी कैन हैव द यूनिट, प्रेशर का यूनिट हम निकाल सकते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, जो आपने स्कूल लाइफ में देखा था। यहाँ पे वापस वो आ जाता है। एंड प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, ये मैकेनिज्म मैंने बताया। गैसेस पार्टिकल्स ऑलवेज कंटीन्यूअस मोशन में होते हैं, और व्हेन दे आर इन मोशन दे स्ट्राइक्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर के वॉल के ऊपर टक्कर देते हैं, और जिसके कारण प्रेशर एक्सर्ट होता है, वो प्रेशर मेजर किया जाता है। टेम्परेचर की बात की हमने। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ hotness of the body, hotness of the substance, hotness of the matter, that is nothing but the temperature. और टेम्परेचर मेजर करने के 3 स्केल्स है। हमने ये टॉपिक ऑलरेडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री के अंदर, पहला जो चैप्टर है उसके अंदर हमने डिस्कस किया है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन 3 डिफरेंट स्केल्स, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड स्केल थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नथिंग बट द केल्विन। देखिए पुराने जमाने में डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, अभी आज की तारीख में केल्विन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसके पीछे रीजन है, इसी चैप्टर में देखेंगे हम लोग, व्हाई केल्विन इज बीन एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड व्हाई डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज नॉट दैट मच। But temperature is measured in degree Celsius, that is measured in Kelvin, that is also measured in Fahrenheit, है ना। So और उनका कन्वर्जन क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री के अंदर देखा हमने। So टेम्परेचर इन केल्विन अगर कैलकुलेट करना है तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 का फैक्टर है ना। तो टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं अच्छी तरह। So you can say temperature in Kelvin is equal to 273 plus temperature in degree Celsius। तो हमारे पास जितना भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो यहाँ पे रख दो, उसके अंदर 273 ऐड करो, ये मिलेगा आपको टेम्परेचर इन केल्विन। और ये भी देखा हमने, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो दिस इज, यू कैन से, ये डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो ये फ़ारेनहाइट स्केल है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और ये फॉर्मूला सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री नाम के चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। पहला चैप्टर है हमारा, जिसके अंदर डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इनटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, जिससे हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखें। दैट इज नथिंग द टेम्परेचर। एवरी गैस हैज अ टेम्परेचर, and temperature is a measurement of hotness of the particle, hotness of the gas, that is measured with the temperature, and there are 3 scales: degree Celsius, Kelvin and degree Fahrenheit. There are 3 scales जिसके ऊपर मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी। अभी डेंसिटी ऑलरेडी आप अच्छी तरह जानते हो कि डेंसिटी आपने देखा हुआ है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला भी आप अच्छी तरह जानते हो, अपने स्कूल लाइफ से उसे देख रहे हैं हम लोग, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, है ना। सो क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू, you know that density is equal to mass upon volume.
mass upon volume. Density is denoted by D and this mass upon volume. तो हम लोग अगर notation में लेके जाते हैं तो D is equal to M upon V. This is the formula for density. अभी इसके units की अगर बात करते हैं तो mass is measured in kilogram, that is a SI unit, and volume is measured in meter cube. ये देखिए यहाँ पे ठीक है. So kg per meter cube, this is the unit for density. Every gas has the density, and density is a very important property of the gas. No doubt, the density of gas is very low as compared with solids and liquid. Solid और liquid का density generally ज़्यादा होता है, और gas का density generally कम होता है. Density is mass upon volume. So this is what we can say density. Every gas has the density, and we can measure the density. Say for example, हम जानते हैं Pune city is mostly affected by the pollution, and pollution इसी तरीके से measure किया जाता है. How much is the density of that particular substance is there, है ना? तो पुणे सिटी के अंदर, दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड. दिल्ली के अंदर इतना पोल्यूशन है वहां पे, तो कितने पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर एरिया में दिए हुए हैं, दैट इज हाउ मच मास इज गिवन इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द एयर, है ना? अगर हम दिल्ली का 1 लीटर एयर लेते हैं, 1 लीटर एयर के अंदर कितना किलोग्राम कौन सा भी सब्सटेंस है, मतलब नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, सारे गैसेस मेजर किए जा सकते हैं. दैट इज नथिंग बट यू कैन से डेंसिटी. वही पूना सिटी में आते हो तो पूना सिटी में दिल्ली से कम है, और वही किसी रूरल एरिया में जाते हो महाराष्ट्र के, तो वहां पे और भी कम रहेगा. सो दैट इज यू कैन से डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी ऑफ द फैक्टर्स. सो दैट इज यू कैन से डेंसिटी का यूनिट और डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, और एवरी गैस हैज द डेंसिटी एंड दैट डेंसिटी मैटर्स ओवर हियर. सो दैट इज यू कैन से डेंसिटी. Two more measurable properties are there. 6 properties, nothing but you can say diffusion, and 7th one is nothing but the effusion. अभी ये effusion आपके बुक में नहीं है, बट चलते जाते मैं आपको बता देता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है effusion भी. So let's move on now. Diffusion. ये diffusion क्या है? What is this diffusion? जिस तरीके से मास है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, उसी तरीके से डिफ्यूजन नाम की एक प्रॉपर्टी है जो हर गैस के लिए एप्लीकेबल होता है. डिफ्यूजन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर गैसेस विद ईच अदर. सपोज अभी हमारे पास ये पहला कंटेनर है. दिस इज द फर्स्ट कंटेनर इन व्हिच नाइट्रोजन इज केप्ट, और दिस इज इनक्लोज्ड. दिस इज यू कैन से सेकंड कंटेनर जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन भरा हुआ है, दैट इज अगेन क्लोज्ड. ओके. So first container which is filled with nitrogen 1 liter, second container which is filled with hydrogen 1 liter. क्या करते हैं हम लोग, ये जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के ऊपर हम लोग उल्टा रख देते हैं. So this is the container of hydrogen, ये वाला, और नाइट्रोजन इसके ऊपर उल्टा रख देते हैं like this, ये उल्टा रख देते हैं हम लोग यहाँ पे. So होता क्या है कि this is the nitrogen. When they are allowed to mix, 2 different gases or more gases are allowed to mix with each other. So nitrogen will come down with hydrogen and hydrogen will go down with nitrogen. ऐसा नहीं होगा, एरो ऐसा दिखा, ऐसा मतलब हाइड्रोजन पूरा ऊपर जाएगा और नाइट्रोजन पूरा नीचे आएगा, ऐसा नहीं होगा. नॉर्मली ये फिनोमेना हम अच्छी तरह जानते हैं. लाइटर गैसेस आर जनरली गोस टू द अपर साइड एंड हेवियर गैसेस जनरली कम्स टू द ग्राउंड लेवल एंड कम्स टू द लोअर डाउन. सो ये है, लेकिन यहाँ पे उतना वो एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज ये कंटेनर के अंदर रखे गए हैं. सो पहले कंटेनर में नाइट्रोजन था, दूसरे कंटेनर में हाइड्रोजन था, दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर रखा और ये उनका स्लिप निकाल लिया. They are allowed to mix with each other. 2 gases are allowed to mix with each other. तो नाइट्रोजन comes down, हाइड्रोजन goes up and they mix with each other. थोड़ी समय के बाद आपको ये पूरे कंटेनर में इधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलेगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं. So the mixing of 2 or more gases is called as a diffusion property. So every gas has that tendency to diffuse with each other. To diffuse मतलब to mix with each other. Okay, mix with each other. The diffuse का normal meaning है mixing, but scientifically उसे diffuse ही कहा जाता है. So diffusion is mixing of 2 or more gases with each other is called as a diffusion properties. Every gas has gas mix with each other. Take example of air. हम अच्छी तरह जानते हैं. Air के अंदर there are many gases. नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कई सारे गैसेस, वाटर वेपर्स है. देयर आर मेनी गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट इनटू द एयर. भले रेयर होंगे, रेयरेस्ट होंगे, लेकिन होते हैं. ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, कितना परसेंट होता है आप जानते हो, फिर बाकी गैसेस होता है. सो ऑल गैसेस आर देयर एंड दे आर मिक्स्ड विद ईच अदर, है ना?
तो ऐसा तो नहीं ना हम लोग जब ब्रीदिंग कर ले तो सिर्फ ऑक्सीजन सिलेक्ट करके लेते हैं, इसने ना सारे गैसेस जितने एयर के अंदर है वो सारे हमारे इनहेलिंग के अंदर आ जाते हैं, हम ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, बाकी सारे वापस एक्सेल कर देते हैं। सो सारे गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। मिक्स सारे गैस होते हैं, लेकिन rate of diffusion is different for different gas. This is very important. Rate of diffusion is different for a different gas. सारे गैसेस मिक्स तो होते हैं, लेकिन मिक्स होने का रेट कितने स्पीड में वो डिफ्यूज होते हैं, दैट मे चेंज, वो चेंज होता है। And that is you can say rate of diffusion. So rate of diffusion is called rate of diffusion. You can say mass of gas diffused, mass of gas diffused upon time taken. ऐसा फॉर्मूला है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। अभी जैसे कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो मास ऑफ हाइड्रोजन मिक्स्ड डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन बाय द हाइड्रोजन, और दूसरे केस में डिफ्यूजन रेट ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन डिफ्यूज्ड अपॉन द टाइम टेकन बाय द नाइट्रोजन, है ना। देखिए ना, हमारे इंसान की भी बात होती है, हमारे अंदर भी ऐसी क्वालिटी होती है, हम लोग भी अभी दुर्भाग्य से आप 11th में हो, आपको कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला है कोरोना के कारण, नहीं तो अदरवाइज आप कॉलेज में जाते थे, कुछ नए दोस्त आपको मिल जाते थे। हमारे अंदर कुछ क्वालिटी होते हैं, हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत इजीली लोगों के साथ मिक्सअप होते हैं, बहुत इजीली मिक्सअप होते हैं, नए लोगों के साथ भी मिक्सअप होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जरा थोड़ा सा टाइम लगता है हमें दोस्तों के साथ मिक्स होने, नए दोस्त बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। मिक्स तो होते हैं सब लोग, है ना, कुछ बहुत रेयरेस्ट केस होता है कि कुछ लोगों के दोस्त होते ही नहीं, बहुत कम दोस्त होते हैं, सबके कहीं ना कहीं दोस्त होते हैं, कॉलेज में जाएंगे और दोस्त बनते हैं, बनाने का स्पीड सबका कम ज्यादा होता है, कुछ लोग बहुत स्पीडली दोस्त बना लेते हैं, कुछ थोड़ा स्लोली बनाते हैं, that is what is the rate of diffusion। उसी तरीके से ये rate of diffusion है। So whatever the mass of gas diffused, that is mixed upon the time taken for the diffusion is called as the rate of diffusion. So what is everyone? So that is you can say rate of diffusion. The rate of diffusion is inversely proportional to density. Inversely proportional to density. ये टॉपिक जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मस्त भी है, उसके बारे में हम लोग और डिटेल में कभी बात करेंगे व्हेन वी हैव टू डिस्कस जेई नीट लेक्चर रिगार्डिंग दिस रेट ऑफ डिफ्यूजन। जेई नीट के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर मास। सो दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू, बट यहाँ पे हम इतना ही डिस्कस करें व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज मिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस विद ईच अदर, इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। So every gas shows the property of diffusion, but rate of diffusion is different. So what is rate of diffusion? So rate of diffusion is mass of gas diffused. Mass of gas diffused upon time taken for the diffusion is called a rate of diffusion. So this is diffusion property. Clear with this? And last is nothing but the effusion. So effusion property आपकी बुक के अंदर listed नहीं है, लेकिन मैं आपको जाते जाते बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल, हम बचपन से बलून्स देखते आए हैं, बलून्स खेलते लिए आए, है ना। बचपन में तो बलून काफी अच्छे लगते हैं, अभी भी लगते हैं, है ना। कई सारे इवेंट्स होते हैं, बर्थडे होता है, तो जब बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है उसके अंदर तो बलून्स होते हैं, अलग अलग शेप के बलून्स होते हैं, है ना, और कलर के भी होते हैं। तो आप देखिए ना कि बचपन में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि हमने कहीं सेलिब्रेशंस के लिए कहीं यात्रा या किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर आप गए थे और वहां से बलून लेके आए, और बलून लेके आए, हमने खेले खेले घर के अंदर रख दिया, और दूसरे दिन या तीसरे दिन जब उस बलून को देखा तो बलून का साइज छोटा हो चुका है। कई बार बलून तो फूट ही जाता है ना, बलून बर्स्ट हो जाता है, वो तो अलग बात है, बट अगर बलून मानो अपने नहीं टूटने दिया, आपने घर के अंदर रखा, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको समझ में आया कि आपका बलून का साइज जो बड़ा था वो अपने आप छोटा हो गया। यू मे हैव ऑब्जर्व दिस फिनोमेना, नहीं तो अभी ऑब्जर्व कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, आपके आजू बाजू छोटे बच्चे होते हैं, आप भी ला दो। व्हाई इट हैपेंस? जिस बलून के अंदर काफी एयर था, बलून बड़ा था, वो कुछ समय बाद, 1-2 दिन के बाद वो बलून छोटा क्यों हो जाता है? व्हाई इट कम्स डाउन? ओके, तो ये जो बलून है ये छोटा क्यों होता है? The reason behind that, there is a phenomena called as diffusion. There is a phenomena called as diffusion. जिस तरीके से गैस डिफ्यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, उसी तरीके से फिनोमेना दैट इज डिफ्यूजन। तो अगर मानो हमारा ये बलून है, सो दिस इज यू कैन से बलून, है ना, ये बलून है, तो इसके अंदर एयर है यहाँ पे, तो एयर क्या होता है ना, कम्स आउट ऑफ दिस वॉल ऑफ द कंटेनर। हमारा बलून जो है, बलून का जो वॉल होता है उसमें से एयर बाहर आता है, क्योंकि एयर पूरा बाहर नहीं आता, बट एयर के अंदर काफी सारे गैसेस है, और कुछ गैसेस ऐसे कि जिनका मॉलिक्यूलर साइज और एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, और वो फिर बलून का जो वॉल होता है उसमें से छोटे पोर में से बाहर आता है,
छोटे पोर्स में से बाहर, पोर मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे होल्स कहते हैं, छिद्र कहते हैं, जैसे कि हमारे स्किन के ऊपर होते हैं, है ना, हमारे यहाँ पे स्किन के ऊपर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उसी तरीके से ये जो बलून है, बलून के वॉल में से जो छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसमें से छोटे गैस के पार्टिकल्स बाहर आते हैं, एंड ये जो एयर कम्स आउट ऑफ दिस wall of the container, wall of this balloon is called as the diffusion process. Diffusion process. So that is also one of the phenomena which is observed by the gases. Being the gas particle size is smallest one, they can come out of this wall of the container. तो balloon कौन से size का बना हुआ है, balloons के force कौन से size का है, उसके ऊपर वो depend करता है। लेकिन normally balloons के यहाँ से कुछ छोटे air particle जो उसके अंदर भरा हुआ है, they can come out of this one, and that's why balloons का size छोटा होता है, आपको दिखाई देता है। This is very scientific, है ना। बचपन में तो हमसे प्रो दे देते हैं, हमें लगता था हमारा बलून किसी ने तो पंक्चर कर दिया इसलिए छोटा हो गया, है ना। पंक्चर करेंगे तो पूरा एयर निकल आता है, लेकिन प्रॉपर बलून होने के बावजूद भी वो छोटा होता है। रीजन बिहाइंड दैट दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एयर कम्स आउट ऑफ द बलून थ्रू द वॉल, बीइंग देयर इट हैज अ स्मॉल पोर्स, एंड द air particles or air gases which has a small particle size comes out of this wall, and that's why size decreases. Clear? So this is the phenomena. All these are the measurable properties of the gases. So we have discussed two topics. Topic number 1 is the general properties of gases, and number 2, out of that, measurable properties of the gases. So which are the measurable properties of the gases? Mass, volume, pressure, temperature, density, diffusion, and effusion. These are the properties of the gases which can be measured. Clear with this? So with this, इस chapter का first section खत्म होता है। first section खत्म होता है, जो हमारा introductory section था। अभी second concept, second section of this chapter called as your core concept, related with the core concept, वो हमें डिस्कस करना है। लेट्स मूव टू नाउ कोर कांसेप्ट ऑफ द चैप्टर कॉल्ड एज gaseous laws. So let's move ahead with gaseous laws, second section. Okay, so core concept of the chapter is nothing but the gaseous laws. Gaseous laws. Okay, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बढ़िया भी है, इजी भी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट भी है। दैट इज गेसियस लॉज। आप नेचर में देखिएगा, अगर ठीक से ऑब्जर्व करते हो तो नेचर में हर एक चीज लॉ से चलती है। दैट मे बी अ नेचुरल लॉज, नेचुरल लॉज ऑफ सिलेक्शन वगैरह होता है कि हम जानते हैं नेचर में इकोसिस्टम है ना। नेचर में इकोसिस्टम होता है, मतलब बायोलॉजी में आपने देखा होगा इकोसिस्टम नाम का फिनोमेना क्या है। हर चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है ना। सो दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो नेचर में हर एक चीज इज गवर्न, एवरीथिंग इज गवर्न बाय द लॉज, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल लॉज। तो गैसियस की बात करते हैं, गैसियस स्टेट की बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं, तो एवरी गैस हैज सम सर्टेन प्रॉपर्टीज or followed some certain rules, laws, and these natural laws is been discovered by the scientist. These natural laws is been discovered by the scientist कि किस तरीके से गैसेस का नेचुरल बिहेवियर होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गैसेस के इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, and that's what is the gaseous laws, and these laws are formulated over here। और इस चैप्टर के अंदर हम उसमें से 3 से 4 लॉ देखेंगे। there are many laws related with gases one, but उसमें से 3 से 4 जो बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लॉज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, गेसियस लॉज। ओके, सो कौन से गेसियस लॉज है? तो नंबर 1 दैट इज यू कैन से बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, डोंट रीड इट एज अ बॉयज लॉ, इट्स अ बॉयल्स लॉ। बॉयल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बॉयज और गर्ल्स इज अ जनरल टर्म, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज बॉयल्स लॉ इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। नंबर 2 चार्ल्स लॉ, चार्ल्स अगेन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। थर्ड वन एवोगाड्रोस लॉ, Avogadro's law. Number 4, Gay-Lussac's law. And number 5, Dalton's law. Dalton's law. ये 4 लॉ डिस्कस करते हैं हम लोग। 5 लॉ आते हैं, 5 लॉ हो गए यहाँ पे। There are many, out of that we are discussing these 5 laws. Number 1 is called as Boyle's law, साइंटिस्ट का नाम है। चार्ल्स लॉ, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। एवोगाड्रोस लॉ, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। Gay-Lussac's लॉ, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। डाल्टन्स लॉ, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। जिस साइंटिस्ट ने वो ढूंढ निकाला उसी के नाम से वो लॉ दिया है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, Gay-Lussac's लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। ये पांचों लॉ इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर।
जिनको ये 5 लॉ समझ में आएंगे इन्हें ये चैप्टर समझ में आया, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट्स वेरी कोरा, वेरी इजी, बहुत इजी है. एक लॉ समझेंगे तो बाकी सारे समझ में आते हैं, सारे समझ में आते हैं. अभी देखिए ये लॉज, और इसके पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के अंदर हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज में देयर इज अ फिनोमेनन कॉल्ड एज मास, सॉरी प्रेशर, कॉल्ड एज वॉल्यूम, कॉल्ड एज टेंपरेचर, है ना. देन मास दैट कैन बी इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स. सो pressure, volume, temperature and number of moles, these are the very important phenomena. You can say pressure, volume, temperature and number of moles. P represent the pressure, V represent the volume, T represent the temperature, N represents the number of moles. ये चार important factors है, चार important factors है. हर गैस के साथ ये जुड़े हुए हैं, है ना. हमने देखा these are the measurable properties of gases. Every gas has the pressure, shows the pressure. Every gas has the volume. Every gas has the temperature. Every gas has the fixed mass, that is number of moles. Number of moles. Gas laws, gaseous laws gives the relation between pressure, volume, temperature and number of moles. Pressure, volume, temperature and number of moles. The relation between these quantities or these phenomena, physical quantities, is nothing but these laws. These are called gaseous laws. These are nothing but the gaseous laws. तो ये सारे laws इन्हीं सब के बीच का relation देते हैं. How they are related with each other? How? किसी भी गैस का pressure, volume, temperature and number of moles ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से related है, किस तरीके से related है ना. So ये discuss करना ये gaseous laws का काम है. So gaseous laws gives the relation between temperature, pressure, volume and number of moles. So ये relation देता है gaseous laws. तो उसमें से देखते हैं हम लोग Boyle's law. Boyle's law gives the relation between pressure and volume. Pressure and volume. Charles law gives the relation between volume and temperature. Volume and temperature. Avogadro's law gives the relation between volume and number of moles. Gay-Lussac's law gives the relation between pressure and temperature, like this one. And Dalton's law gives the relation between pressure or mixture of gases of pressure. So this is, you can say, Dalton's law. So देखिए ना, बहुत simple है, बहुत ही simple है. What are the gaseous laws? Gaseous laws gives the relation between pressure, volume, temperature and number of moles for each and every gas. हर गैस का temperature, pressure, volume and number of moles का relation देने वाला phenomena उसे कहते हैं हम लोग gaseous laws. उसे कहते हैं gaseous laws. कितने gaseous laws हैं यहाँ पे? तो Boyle's law है, Charles law है, Avogadro's law है, Gay-Lussac's law है, Dalton's law है. So Boyle's law किसका relation देता है? Boyle's law gives the relation between pressure and volume. Though there are 4 quantities, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन बॉयल्स लॉ देता है. मतलब ये दोनों का वो नहीं देता है, वो नहीं है. मतलब प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, दैट इज गिवन बाय बॉयल्स लॉ. चार्ल्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेंपरेचर. वॉल्यूम और टेंपरेचर का रिलेशन क्या है किसी भी गैस के लिए, दैट इज गिवन बाय चार्ल्स लॉ. एवोगाड्रोस क्या देता है? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का देता है. एंड Gay-Lussac's लॉ क्या देता है? तो प्रेशर एंड टेंपरेचर का देता है. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेंपरेचर? एंड डाल्टन लॉ क्या देता है? तो प्रेशर एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रेशर, उसका रिलेशन देता है. बस उन्हें वन बाय वन देखना है और फाइनली एट द एंड हमें डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन. दैट्स ऑल. दिस इज द कोर कांसेप्ट. बहुत इजी है. सो होप सो एवरीवन गॉट इट. Gaseous laws are nothing but the laws which are naturally existing, and these are discovered by the scientist, and that gives the relation between temperature, pressure, volume and number of moles. So out of that we'll discuss one by one. So first is nothing but the Boyle's law. So let's move to first, what is Boyle's law? Boyle's law. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया, Boyle's law gives the relation between pressure and volume. Pressure and volume. अब देखिए, when Boyle's law gives the relation between pressure and volume, ये दोनों का मतलब these two has to be constant, क्योंकि 4 important factors है ये किसी भी गैस के लिए measurable है, और इसमें से 2 का relation जब देता है कोई law, तो दूसरे 2 constant होते, वो fixed होते, वो नहीं बदलेंगे. So only the change within these 2 properties will be studied, and rest will be kept constant. ये दोनों क्या रखेंगे? Constant रखे जाएंगे. So that is what we can say. ये इसके अंदर आ जाता है. So this is very important that how this quantity changes. Clear with this? How this quantity changes for you. So Boyle's law gives the relation between pressure and volume. Boyle's law gives the relation between pressure and volume. Now इसके अंदर पहला आता है statement और फिर आता है उसका mathematical derivation. लेकिन मैं यहाँ पे पहले mathematical derivation पढ़ाऊंगा और फिर उसका statement पढ़ाऊंगा. वो बहुत interesting होता है. So according to Boyle's law, okay, pressure
is inversely proportional to volume at constant temperature and number of moles. At constant temperature and number of moles. This is called as Boyle's law. This is the mathematical statement, or also this is called as a statement of Boyle's law. What is statement of Boyle's law? According to Boyle's law, pressure is inversely proportional to volume. Pressure is inversely proportional to volume at constant temperature and number of moles. एक सूत्र, इसके अंदर का एक सूत्र, एक सेंट्रल आइडिया समझिएगा. कोई भी लॉ दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन देता है तो बाकी दो कांस्टेंट होने होंगे. प्रेशर वॉल्यूम दिया तो ये दोनों कांस्टेंट है, टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स दिया तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, लाइक दैट. बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बात करता है, सो ये दो कांस्टेंट बने, सो ये लिखना पड़ेगा. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. सो दिस इज द स्टेटमेंट. तो मैथमेटिकली भी इजी है स्टेटमेंट, मैथमेटिकली फॉर्म है और स्टेटमेंट भी ऐसा है. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ pressure is inversely proportional to volume at a constant temperature and given mass of a gas or at a constant number of moles. अभी थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में अगर आप डिफाइन करना चाहते हो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, है ना. ऐसा मत समझिएगा कि बुकिश लैंग्वेज में और थ्योरेटिकल फॉर्मेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. इट्स नॉट लाइक दैट. थोड़ा बहुत डिफरेंस इधर उधर होगा, आपको समझना है. क्या समझना है? अगर आप बुकिश लैंग्वेज में उसे स्टेटमेंट डिफाइन करना चाहते हो तो फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, fixed mass मतलब number of moles fixed रहेंगे. Fixed mass of a gas at a given temperature, for that pressure is inversely proportional to volume. Your volume is inversely proportional to pressure. This is called your Boyle's law. So Boyle's law states that for a given mass of a gas, pressure is inversely proportional to volume at a constant temperature. So this is the statement. अभी देखिए, ये हम लोग यहाँ पे 4 to 5 लॉज डिस्कस करने वाले हैं और सारे लॉज के अंदर एक जरूरी चीज है, आपको उसका स्टेटमेंट डिफाइन करना है, स्टेटमेंट लर्न करना है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म लर्न करना है और फिर उसको प्रूव करना है, मतलब सॉल्व करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, नथिंग मोर. स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म एंड उसे सिंप्लीफाई करना, दैट इज द ओनली पार्ट ऑफ दिस वन. आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट जो अभी मैंने बताया और फिर ये और फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दैट इज यू कैन से बॉयल्स लॉ. समझ रहा है? तो व्हाट इज स्टेटमेंट फॉर बॉयल्स लॉ? Fixed mass of a gas, for a fixed mass of a gas, pressure is inversely proportional to volume at a constant temperature. या फिर pressure is inversely proportional to volume at a constant temperature and number of moles. That is what we can say over here. Clear with this? Yeah. Statement has to be learned. Statement has to be learned, and that has to be as like a bookish language. Statements definition has to be in a bookish language. आपकी बुक में जो है उसी लैंग्वेज में उसी तरीके से होना जरूरी है. So everyone please keep note of this one. So statement has to be learned. तो statement बताया मैंने. For a fixed mass of a gas, pressure is inversely proportional to volume at a constant temperature. So that is you can say Boyle's law statement. Clear with this? Now इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. तो अभी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, प्रोपोर्शनलिटी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे इक्वल टू में, तो क्या आएगा? P is equal to, इसके बजाय आएगा K upon V, ऐसा आएगा. Therefore V इस तरफ लेके आता हूँ तो PV is equal to K. K is nothing but the proportionality constant. K is nothing but the proportionality constant. तो अभी ये पहला स्टेटमेंट तो मैंने बताया और यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेटमेंट तैयार होता है. पहला स्टेटमेंट मैंने बताया यहाँ पे at a fixed mass of a gas or for a fixed mass of a gas, pressure is inversely proportional to volume at a constant temperature. This is the second statement. This gives simplified form gives the second statement. देखिए PV is equal to constant. PV is equal to constant. मतलब we can say PV is equal to constant. इसका मतलब ये होता है, ये क्या है? This is the product of pressure and volume. This is the product of pressure and volume. So इसका मतलब ये होता है product of pressure and volume remains constant. Product of pressure and volume remains constant. वो कैसे देखिए आप लोग? इस लॉ का और इसको भी हम लोग समझते हैं. सपोज ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर है और इसके अंदर हमने गैस भरा हुआ है. सो दिस इज द गैस, ये भरा हुआ और ये उसका पिस्टन है. ठीक है, चलो इसे हटा दे, इसकी जरूरत नहीं है. ये हमारा पिस्टन है. ठीक है, सो ये गैस है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है. ओके, और ये इसका वॉल्यूम है, ये यहाँ से लेकर ये इसका वॉल्यूम है. दैट इज कॉल्ड V1 इतना वॉल्यूम है और ऊपर से P इतना प्रेशर है. P इतना प्रेशर है. अभी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. इसका मतलब होता है वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर का वैल्यू कम होने वाला है और वॉल्यूम अगर कम होगा तो प्रेशर बढ़ने वाला है ना. तो आप देखिए ना कि ये प्रेशर का पिस्टन अगर हम ऊपर से दबाते हैं, ये अगर नीचे आएगा, ये जो है ये नीचे आएगा, यहां तक आएगा तो प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया, है ना. प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होता है
और ये अगर हम इधर लेके जाते हैं, यहाँ पे मतलब कम करते हैं, बाहर का प्रेशर कम करते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ने वाला है, गैस का वॉल्यूम इतना होगा कि नहीं होगा? दैट इज व्हाट द बॉयल्स लॉ स्टेट्स, दैट कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब है अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट्स व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे देखिए, प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम होता है, और प्रेशर कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ता है। दिस व्हाट। तो इसी के कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होता है। दैट मीन्स एनी हाउ प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। So product of pressure and volume remains constant. The product of pressure and volume remains constant. Clear with this? So this is what we can say. So this is the second statement. पहला statement यहाँ पे आता है like this one, और second statement यहाँ पे आता है। तो second statement क्या कहता है? Second statement of Boyle's law states that product of pressure and volume remains constant. Product of pressure and volume remains constant. तो इसका मतलब ये होता है, अगर हमारे पास प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम will be V1. Then अगर हमारा प्रेशर P2 होता है तो वॉल्यूम विल बी B2. अगर हमारा प्रेशर P3 होता है तो वॉल्यूम विल बी B3, बट दैट विल बी मेंटेन कांस्टेंट अप टू Pn भी है, अप टू Pn। प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होता है, लेकिन एनी हाउ द प्रोडक्ट विल बी मेंटेन कांस्टेंट। एनी हाउ दिस प्रोडक्ट विल बी मेंटेन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज सेकंड स्टेटमेंट। सो P1 V1 is equal to P2 V2। इसका मतलब होता है P1 upon P2 is equal to V2 upon V1। All these are the different mathematical forms of Boyle's law. All these are the different forms of the Boyle's law. So all are the different forms of Boyle's law. That is what we can say over here. Clear with this? So Boyle's law का first statement, उसका mathematical form, simplification, second statement, and another simplification. That is what we get here. Clear with this? So this is what about the Boyle's law? The Boyle's law पहले क्या कहता है? At a fixed mass of a gas, volume or pressure is inversely proportional to volume at a given temperature at a constant temperature. This is called as Boyle's law. उसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो PV is equal to constant, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, बट एनी हाउ दैट विल बी मेंटेन कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से P1 V1 is equal to P2 V2। प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम V1 है, और प्रेशर P2 है तो वॉल्यूम V2 है, बट दैट विल बी मेंटेन कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई P1 upon P2 is equal to V2 upon V1। This is what we can say regarding the Boyle's law. Clear with this? तो ये पहला लॉ है हमारा। We have to discuss graphical representation Boyle's law, and the density formula is redefined because of this Boyle's law. Okay, but we'll discuss in tomorrow's lecture. So what we have discussed in today's lecture, we'll just conclude the things what we have seen here in today's lecture. In today's lecture, we have discussed that general properties of the gases, as well as also we have seen measurable properties of the gases. In measurable properties, we have seen mass, volume, temperature, pressure, density, diffusion, and effusion. These are the properties what we have discussed here in the chapter. Furthermore, we are here with gaseous laws. Gaseous laws gives the relation between pressure, volume, temperature, and number of moles. So there are 4 to 5 gaseous laws what we have discussed here in the chapter. Number 1 is Boyle's law. Boyle's law gives the relation between pressure and volume at constant temperature and number of moles. We have to discuss graphical representations and related things. See you tomorrow. Till then, thank you very much. See you. Bye-bye.